देयर इज अ 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात। तो हमारे वहाँ के जो खारवा कम्युनिटी है, खलासी जो है, उनके बारे में कभी बात नहीं हुई। ये जो सेलर्स होते हैं, हाँ, सेलर जो होते हैं कि किनारे तो खाली पड़े नानी नानी पगली ने नाना एवा सपना ની રેત વાળી ઢગલી ને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ હાંફી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં હાંફે એવો ખારવો ખલાસ એવો હાડનો પ્રવાસી। 2014 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी से मिला था, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, परफॉर्म करते हो और मैं सुनता हूँ तुम्हें। कांठे थी जा तू जा दरिए दरिए थी जा तू जा दरिए कांठे थी जा तू जा गोतिलो तमे गोतिलो गोतिलो कांठे थी जा तू जा जा दरिए थी जा तू जा दरिए कांठे थी जा तू जा गोतिलो तमे गोतिलो गोतिलो वेवा दो जा वहिए रेवा दो जा छइए वेवा दो हवे रेवा दो हवे નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતી લો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતી લો તમે ગોતી લો એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને એના ઠામને ઠેકાણા મને દઈ દો ને એવો કોણ છે ખલાસી મને કહી દો ને ગોતી લો તમે ગોતી લો ખેલૈયા ઓ ખેલૈયા અંબર હૈયા નિકાલે તું તારી નૈયા અંબર હાય ખેલૈયા ઓ ખેલૈયા અંબર હૈયા નીકળી જા લઈને નૈયા અંબર હૈયા વેવા દો जा वहिए रेवा दो जा छइए वेवा दो हवे रेवा दो हवे નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતી લો। How cool. Aditya Gadvi, Achin Thakkar, welcome to CNN News 18. Thank you. That was, of course, your brand new song, a mammoth hit called Khalasi. So to start with, who approached whom when you started working on this song? So Ankur Tiwari, who is the music supervisor for Coke Studio, I think Ankur Tiwari was instrumental in getting the whole thing done for all the songs this season. So he asked if we want to do something for Gujarat, and we came up with this little concept of, we still hadn't come up with the concept of a sailor or anything, and that's when Aditya came on board soon after that. I heard his voice and I was like mind blown, because we just had like this little melody, and I heard his voice and I was spellbound with his presence of his voice and everything. So that happened, and then Soumya sir, who wrote the lyrics, came on board. So it was like one after the other, and then all of us met at the studio, and then Khalasi came about. I was approached by the Coke Studio team. Coke Studio Bharat. Yes, Coke Studio Bharat team. And my management team was approached, and my manager asked me that Coke Studio Bharat is doing a song. They are doing regional this time. So they have named it Coke Studio Bharat, and they want to do one song from Gujarat. They want to represent Gujarat, and they have approached us. They want me to sing that song. And I was really happy that I have grown up listening to songs from Coke Studio. There is a lot of inspiration from Coke Studio that I've got in my own singing and my songs and all, you can see that. And I was happy to be associated with Coke Studio. And then I got to know that Soumya sir is writing lyrics and Achint is doing the music. So जो हम बोलते हैं ना हिंदी में सोने पे सुहागा, सोने पे तो ऐसी बात हो गई थी मेरे लिए। एंड आई वाज रियली हैप्पी कि वी हैड टू क्रिएट अ न्यू थिंग। गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक नया गाना बना रहे हैं, तो गुजरात के आज के समय की हम बात कर रहे हैं। सो वी क्रिएटेड अ होल थिंग, और सौम्य सर गेव द लिरिसिस्ट, ही इज अ वेरी फेमस playwright and a very good actor director of Gujarat, Soumya Joshi. Fantastic. He gave this whole thought of a sailor
and ocean, and at the same time using that metaphor, he also is talking about the internal world. Then maybe briefly आप explain करना चाहेंगे meaning in lyrics का खलासी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर गुजरात का फोक जो है वो आप सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर गुजरात इज़ नोन फॉर इट्स गरबा, लेकिन हमने सोचा था कि वी वांट टू गिव समथिंग न्यू। एक इमेज जो बनी हुई है गुजरात की, उससे एक थोड़ा अलग चीज देनी है। तो हमने सोचा कि देयर इज अ 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात विच इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन दैट एनी स्टेट हैज। तो हमारे वहाँ के जो खारवा कम्युनिटी है, खलासी जो है, उनके बारे में कभी बात नहीं हुई। ये जो सेलर्स होते हैं, हाँ सेलर्स जो होते हैं, तो वो दे हैव दिस होल खमीर, उनके अंदर जो कहते हैं ना कि करेज जो होता है कि ओशन में जाने का और अपने परिवार को छोड़ के उतरने का। तो वी वांटेड टू टॉक अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम he used this metaphor कि आज के जमाने में इंसान का कॉन्फ्लिक्ट जो बाहर की दुनिया से होता है उससे ज्यादा अपने खुद के अंदर होता है। तो कौन सी लाइंस हैं जिससे हमें पता लगता है, जिसमें आपने डिफाइन किया है ये पार्ट जो आप कह रहे हैं? हाँ, तो he gave 2-3 लाइंस। एक तो जो है जो मैं गा रहा हूँ कि ગોતીલો તમે ગોતીલો એવો ખારવો ખલાસી નથી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો। तो he is talking about the sailor, जो हमारे बॉडी के अंदर हम जो मन जो हमारा है उसे ढूंढने की बात है। अंदर जो दरिया है हमारा, जो वर्ल्ड है, उसके अंदर उतरने की बात है और अपने आप को ढूंढने की बात है। और साथ में हमारे गुजरात की जो कम्युनिटी है, जो सेलर्स है, उनकी भी बात है कि उनका करेज, उनकी जो खुमारी है, उनकी बात है। तो ये सॉन्ग जैसे ही वी गॉट दिस थॉट फ्रॉम सौम्य सर, we were really surprised, we were really मतलब amazed कि अब हमें दिशा मिल गई है किस तरफ जाना। up the whole thing, yeah. And then Achint designed the whole sound, उसका पूरा music arrangement, और बहुत beautiful it was। मैं वही अचिंत से पूछने वाला था। Then Achint, what approach you took when you started working on this song? Because your music generally resonates with today's generation. We have seen, be it the music of Monica Our Darling or your theme track of Scam 1992. Right. So what was interesting about this actually is that the sort of composition was done before Soumya sir came on, and the way it's done, it's sort of like a dance hall reggaeton kind of very tropical music that's you would find associate with beach. Yes, you know, beach culture. You hear this kind of music in Goa or any tropical place. Okay. And what's really interesting is that Soumya sir took a whole tropical, like a beach, correct, fisherman's folk tale kind of thing to this, so it sort of fit really well in, because the music itself is really modern and fun, and of course the way I mean, you can definitely talk about the chapakadu, and that was the flavor of the rap that people are calling. Yeah. I think that's Aditya will be able to explain that very well. So while making this whole thing, I wanted to add one element from our Gujarati folk literature. Okay. So there is a chand style called sapakharu in Gujarat. It's a part of Gujarati folk literature, and आज के ज़माने हम जैसे रैप बोलते हैं, वो हमारे छंद, चारणी छंदों में कब से बहुत सालों से गाया जाता है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ हमारा फोक लिटरेचर का कि वो कैसे गाया जाता है, सपाखरू कैसे बोला जाता है कि चढ़ा अहाडी वादड़ा काला दौबड़ा जंबर शुभ दशु होतो राधी माथे उछड़ा दरार अने झिंगुरा मोरला माथे वाहारी मंडाणी चढ़ी एक धारा मेघ राजा मंडाणी जपार ब्रह्मंडे तुरटिया इंद्र पाळ ताळा पाणी वाळा हाथी हुंड वाळा काळा मंडाणी हिलोळ नगावाळा धक्का गाळा नदी नाला फाड़ी नाखा आळा माथे झाड़ा दाड़ा फैलिया अतोड़। तो ये थॉट मैंने रखा और अंकुर तिवारी, अचिंत, सौम्य सर, हम सब बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि the first day we are meeting and he does cool. We are like cool. तो उन्होंने कहा कि नहीं, we want to take this thing, लेकिन हम इसे नया लिखेंगे, नए स्टाइल में। तो सौम्य सर ने इसके लिए हमारे लिरिक्स लिखे कि किनारे तो खाली पड़े नानी नानी पगली ने नाना एवा सपनानी रेत वाली ढगली ने तोफानो तराप मारे हले साव हाफी जाए तोय जेनी हिम्मत अने हाम नहीं हाफे एवो खारवो खलासी एवो हाडनो प्रवासी एवो खारवो खलासी एवो हाडनो प्रवासी गोतीलो 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 गोतीलो। तो मतलब गाना धीरे धीरे अपने आप जो बना है, हम पूरी प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे और ये चीज बनी है। तो देन क्या आप मानते हैं कि आज गाने की वाइब बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वाइब कनेक्ट करनी चाहिए ऑडियंस से, डजंट मैटर व्हाट इज द लैंग्वेज? Absolutely. Yeah, absolutely, because music has there's no language, it's its own language in itself. You know, there are so many songs and so many tunes
all around the world that a 4-year-old can hum, Correct. a 90-year-old can hum. चलिए आगे बढ़ने से पहले would you please like to give us few lines of your another hit song माँ Yes, Mahahetwali. Yes, Yeah, it's a song on mother. गुजराती कवि हो गए हैं दलपत राम करके 200 साल पहले, और उनकी 200 साल पुरानी एक रचना है जो लोग सोचते थे कि यार आज की यंगस्टर्स इससे कैसे कनेक्ट होंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये गाना बनाना है, और आज भी मोर देन 1 करोड़ व्यूज उस गाने पे है। गुजराती जितने भी लोग हैं जो पूरे विश्व में बसते हैं, वो ये गाना सुन के अपने मदर को कॉल करते हैं कि मैंने आज ये माँ पे गाना सुना और मेरी इच्छा हुई कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। हतो हूँ सुतो पारणे पुत्र नानो, रड़ू छेक तो राख तू कौन छानो, मने दुखी देखी दुखी कौन था तू, महाहेत वाली दयाली ज मां तू, सुकामा सुवाड़े बिने पोडी पोते, पीड़ा पामु पंडे तजे स्वाद तोते, मने सुख माटे कटु कौन खातू, महाहेत वाली दयाली ज मातू। ये गाने में मतलब एक इंसान जो बड़ा हो चुका है, लेकिन चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी माँ के सामने तो वो बच्चा ही रहता है। तो वो अपने चाइल्डहुड को याद करके गा रहा है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मेरा कैसे ख्याल रखा है, उस बात का पूरा वर्णन इस काव्य में है। Sure. But now this is done. Yes. Are there more collaboration plans? और कौन से गाने हैं जो आपको लगता है which are hidden gem from Gujarat that you think will find a connection with today's audience? मुझे लगता है कि हमने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट इस कोक स्टूडियो भारत के मंच पे किया कि हमने गरबा के अलावा कुछ किया और ये लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे लगता है कि गुजरात में बहुत लिटरेचर, बहुत म्यूज़िक है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और अगर वो एक्सप्लोर होगा, उसे अचिंत जैसे म्यूजिशियंस अगर उसे नया रूप देंगे, तो इट इज़ श्योरली गोइंग टू बी लव्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। And I think what this song is we didn't do something that's already a folk song. We made our own yes, folk, you know. Yeah. And still people think ke it's a folk. Yeah. People That's a think misconception. Yes. I also felt like this must But be a no, this folk is song. No. Soumya sir has designed this, like he's made folklore. So it's a compliment कि हमने Yeah. नया गाना बनाया, फिर भी लोगों को लग रहा है कि it's connected to the roots, it's a folk song, लेकिन It's not a folk song. हाँ, लेकिन यही खासियत है कि अगर आप कोई भी चीज से उसके रूट से जुड़े हुए हैं और अगर आप नई भी चीज बनाएंगे, फिर भी उसमें आपको एक फोक एलिमेंट नजर आएगा। Now the obvious question, you must be flooded right now with offers from Bollywood, bro. नहीं ऐसा तो कुछ अभी we are not flooded. गाना सुन के लगता है कि ये गाना maybe already Achint will put in one of his one of the films which he's working on. No? Yeah, definitely. Why not? I mean, I should get the film first. I'll put for sure. Sure, Yeah. but Achint, you belong to the new class of music composers. You really are a disruptor who came and conquered the music space with his music, be it the title track of theme song of Scam 92 or Rocket Boys. I don't know how you can. It's more like I'm part of a narrative there. You're working with a director and a filmmaker, so you're more in the music department of that particular project. So it's more to do with the narrative and what the helping out in the storytelling process. So whatever that requires me to do, I'll do that for the film, and I have fun making music. So it's a lot of fun for me to get into the film. It's like the music is also a character, so you get to be an actor. Like, okay, now I'm going to try and do this for this film. So it's fun like that. So then, both of you, जब आप jam करते हैं एक साथ, you jam with musicians or you jam with your team, how difficult it is to let go a good tune, like because it's not fitting in the meter or it's not going with the demand of the script. And what do you do with that piece of music? Well, you just it lies around in your hard drive. I mean, interesting is that Scam. I actually had the tune with me since 2011, and I just had it lying around in my hard drive until I felt maybe this might work here, and then we used it. So nothing ever goes to waste like that. So that way, it's always music is
something new comes up and something old goes out, so it's okay. इट हैज मतलब हर एक आई थिंक गाने की भी और हर एक ट्यून की भी अपनी डेस्टिनी होती है, मुझे लगता है. Correct. इट फाइंड्स इट्स ओन वे, जहाँ पे उसे आना है तब वो प्रकट हो जाती है. जब आप किसी फोक सॉन्ग पे काम करते हैं, डू यू आल्सो डू एडिशनल रिसर्च टू नो अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द सॉन्ग? Yes, it is very important to know that, क्योंकि आजकल मैं I belong from a family that has मतलब हम पीढ़ियों से गुजराती फोक लिटरेचर, चारणी लिटरेचर, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं. तो मुझे ये बहुत छोटा था तब से I have heard my father singing, I have heard many legends speaking about literature and music. तो मुझे ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मुझे मिला है. लेकिन जितने भी लोग आज फोक की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि आप जब भी कोई गाना करें तो उसके पीछे का जो हार्द जो है, उसके पीछे का जो इमोशन है, उसके पीछे जो थॉट है, वो अगर आप पकड़ेंगे तो फोक ज़्यादा खिलेगा. तो जितना आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना आप उसे समझेंगे, उतना और बेहतर वो खिल के आएगा. Now this song is of course a smasher of a hit. Are there now concerts planned? And Aditya, would you be joining him this year? I'd love to. I don't know if there are concerts planned, but I'd love to hear this at Navratri. I'm sure आप perform करेंगे नवरात्रि पे ये गाना तो definitely. नहीं, मुझे लगता है कि हम ये परफॉर्म तो जरूर करेंगे. परफॉर्म हम करना चाहे ना चाहे, लोग चाहेंगे कि हम परफॉर्म करें. तो आई एम श्योर मेरे कॉन्सर्ट्स में ये गाना मैं परफॉर्म करूंगा. लेकिन नवरात्रि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये गाना मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ गरबा में. लेकिन हाँ, कॉन्सर्ट्स में यस, जितने भी हमारे गुजराती शोज होते हैं, मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, इसमें आई एम श्योर कि पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस सॉन्ग. तो देन कॉन्सर्ट्स की बात हो रही है, तो कौन सा गाना है जिससे जनरली आप अपना कॉन्सर्ट स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं? हमारा बहुत ही फेमस सॉन्ग है, हमारे राइटर है जवरचंद मेघाणी, जो हो गए आज से 60 साल पहले. उन्होंने एक गाना लिखा था, मन मोर बनी थन गाट करे. आई लव दैट सॉन्ग. वो जी मैं उससे स्टार्ट. संजय लीला बंसाली ने यूज किया था रामलीला में, एक फिल्म में भी लिया है. और ये उन्होंने लिखा था 60 साल पहले, और उसे कंपोज किया था हमारे एक आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, हेमू गढ़वी, उन्होंने. तो रेडियो पे ये आता था, तो गांव में, गुजरात में लोग इकट्ठा होते थे दोपहर को ये गाना सुनने के लिए, ये आर्टिस्ट को सुनने के लिए. तो ये उसकी बात है. और वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल है, तो मैं इसकी 2 कड़ी सुनाना चाहूंगा. प्लीज. मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, घन घोर जरे चहु मोर मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, ए मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे. बहुरंग जुमंग न पिच बजारिन, बादल सोनिज नैनन दारिन, मेघ मलार उचारिन आकुल, પછી પ્રાણ કોને કનસાદ કરે, મન મોર બની થન ગાટ કરે, મન મોર બની થન ગાટ કરે, મન મોર બની થન ગાટ કરે, હે મારું મન મોર બની થન ગાટ કરે, મન મોર બની થન ગાટ કરે. Oh, what a lovely voice. Yeah. Thank you. Beautiful. You know, गानों की बात हो रही है, कई गाने ऐसे होते हैं जो लिसनर्स इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं, दे टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द सॉन्ग. जब आप गाना बनाते हैं, डू यू ऑल नो कि कौन सा गाना इंस्टेंट हिट होगा और कौन सा विल टेक टाइम? इट्स हार्ड टू से. कभी कभी तो हमको पता भी नहीं होता कि ये इंस्टेंट होने वाला है. करेक्ट. हाँ, तो हम लोग को, बिकॉज बाय द टाइम वी आर डन, because we heard it so much. Yes. It's a long process and it takes time. So I think we lose perspective also that, you know, are people actually going to like it? And some, like for example, Scam, I would have never thought that. Like, neither, whoever heard, my friends also, we did not think this would happen, but sometimes, I don't know, it just happens. And there are so many songs that we thought are so good and then go unnoticed. करेक्ट. So तो ऐसा होता है कई बार. मेरे भी बहुत सारे गाने ऐसे, जब हम बनाते हैं तब लगता है कि ये तो सुपर हिट होगा, ये तो मतलब तोड़ देगा सब कुछ, सारे रिकॉर्ड्स. और जब रिलीज होता है तो इतना उससे नहीं मिलता है रिस्पॉन्स. और कभी कभी हम ऐसे ही फन जोन में होते हैं और कुछ क्रिएट किया,
एंड वी थिंक दैट ये ठीक है, किसी को पसंद आए ना आए पता नहीं, और वो हिट हो जाता है, सुपर हिट हो जाता है। तो खलासी भी जब हम बना रहे थे तो मैंने जैसे कहा कि इट वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि वी आर टेकिंग अ न्यू साउंड, वी आर टेकिंग अ न्यू थॉट, न्यू लिरिक्स, सब कुछ नया है। तो शायद गुजरात का जो जिन्होंने आज तक गुजराती म्यूजिक सुना है वो शायद इसे एक्सेप्ट करे ना करे, हमें नहीं मालूम था, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस आज इससे मिल रहा है तो इट इज ओवरवेलमिंग फॉर अस। outside Gujarat also. हाँ, Outside, yeah, outside. yes. And it was so much fun. The whole process was so much fun Yes, to do. yes, You know, yes. a lot of fun to do this. Today, over 1 lakh songs are uploaded on the internet every day across the world. In this scenario, to both of you, how easy or tough is it for an artist to sell a song? I think it's very tough, and I think what Aditya is doing is very commendable because he's built. I think is what he's doing is the right way. He's built a community around his music. You know, I think that's the way forward for independent artists. You know, build your own community around and then regularly release music, and slowly but surely, you will find your people who want to listen to you. आप अपना जितना ओरिजिनलिटी को आप पकड़ के रखेंगे उतना ज़्यादा लोग आपके आर्ट को पसंद करेंगे। तो मैंने जैसा अचिंत बात कर रहा है, वैसे मैंने जब शुरुआत की फोक गाने की तो ज़्यादातर लोग का फोकस बॉलीवुड पे था। लोग सोचते थे कि बॉलीवुड में गाना है, लेकिन मुझे पता था कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ट्रेडिशन जहाँ मेरे पास जो मेरा पावर है वो फोक है। तो मुझे यही चीज़ सिर्फ यंगस्टर्स को पसंद आए, उस तरह से मुझे आई वांट टू प्रेजेंट इट। और व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो आज हमारे पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावर है, तो लोग जुड़ते गए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और फिर जब आपके गाने एक के बाद एक आते जाते हैं तो लोगों को पता है कि ये आदित्य गढ़वी का गाना आएगा तो इसका ये साउंड होगा, इसके पीछे ये कुछ चीज़ होगी, अचिंत का गाना आएगा तो इसमें कुछ ये होगा। तो इस तरह से लोगों का भी आपके ऊपर भरोसा बैठता है। You know, आपने अपने YouTube चैनल पे एक गाना पोस्ट किया था कुछ साल पहले। गाने का टाइटल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी। जिसे आपने डेडिकेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। जी, क्या आप उनसे मिले हैं, और प्लीज बताइए इस गाने के बारे में। मैं 2014 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी से मिला था, और एक हमारा फंक्शन था, कार्यक्रम था जहाँ पे आई वाज एज अ सिंगर परफॉर्मर और वो चीफ गेस्ट थे, और मेरा पूरा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद ही वाज सिटिंग देयर ऑन द स्टेज, और मैं उनसे मिलने गया। तो वो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते थे कि मैं एक गायक हूँ और आई एम अ परफॉर्मर सिंगर। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, परफॉर्म करते हो, और मैं सुनता हूँ तुम्हें, और ऐसे ही काम करते रहो और गुजरात को अच्छा नाम दिलाओ, आप प्राउड कराओ। तो आई हैव ऑलवेज, मतलब मैं उनसे इंस्पिरेशन ये लेता हूँ कि जिस तरह से वो जिस लेवल पे वो काम करते हैं, आज मेरे जैसा एक यंगस्टर भी उनकी तरह अगर काम करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, इतने घंटे वो काम करते हैं। तो उन्होंने उस समय एक थॉट दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये थॉट मुझे बहुत पसंद आया। तो एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एक आर्टिस्ट की तरह के मैं किस तरह से इसमें प्रदान कर सकूं, तो मैंने सोचा कि मैं एक गाना बनाता हूं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का थॉट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, उस थॉट पे मैंने गाना बनाया और लोगों को वो भी पसंद आया था। तो आप अपने फैंस को दोबारा सुना दीजिए। आओ बनाए एक भारत, आओ बनाए श्रेष्ठ भारत, आओ बनाए एक भारत, आओ बनाए श्रेष्ठ भारत, आओ बनाए एक भारत। How Thank you. nice, how nice. And finally, you know, आपने सोशल मीडिया की बात करी थोड़ी हाँ देर जी। पहले। Do you know the difference between followers and fans? Is there a difference? आई थिंक सोशल मीडिया पे आज हम फॉलो हर एक ऐसी चीज़ को करना चाहते हैं कि जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। जैसे कि आई कैन फॉलो अ आर्टिस्ट, आई कैन फॉलो अ पॉलिटिशियन, आई कैन फॉलो एक्टर, आई कैन फॉलो अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। फॉलो करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन हम फैन उसी चीज़ के होते हैं जो हमारे जीवन में या हमारे पर्सनालिटी पे जिसका बहुत बड़ा असर होता है। तो मुझे लगता है कि फैंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं किसी भी चीज़ के, और फॉलोअर्स तो आज हम बिल्कुल लाखों में करोड़ों में होते हैं हर एक चीज़ के। आप दोनों के अचित? नहीं, मैं तो ज़्यादा Instagram, I try and stay away from it. Only when the song comes out, I go and then I delete the app because मुझे एकदम
अच्छा नहीं लगता इतना हमें ज़्यादा। ऐसे ऐसे यंगस्टर्स चाहिए। गाना आता है तो मैं डाल देता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। Well, thank you so much for your time. Looking forward to lots more. All the best. And जाते जाते आदित्य जी आप हमारे साथ हैं. आप would you like to give us few lines of your another famous track जो आपको बहुत बिल्कुल पसंद है? बिल्कुल, हाँ, बहुत ही थोड़े समय में नवरात्रि आएगी और गुजराती और गुजरात के बाहर के लोग भी गरबे पे झूमेंगे, तो एक मेरा गाना है, गरबा सॉन्ग है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ए जी रंग भीनी राधा ने लई बैठी बादा, रंग भीनी राधा ने लई बैठी बादा, मुरलियों बांध कर मादा, किए सेम रंग भीनी राधा, तारी मुरलियों बांध कर मादा, किए सेम रंग भीनी राधा। ए जी रंग भीनी राधा ने लई बैठी बादा, रंग भीनी राधा ने लई बैठी बादा, मुरलियों बांध कर मादा, किए सेम रंग भीनी राधा, तारी मुरलियों बांध कर मादा, किए सेम रंग भीनी राधा।